क्लेरेसिल की दमक लाएं। कितना प्यारा लगे आपकी त्वचा पे जगे, स्वच्छ साफ खिली खिली क्लेरेसिल की ये दमक। नया क्लेरेसिल साबुन अतिरिक्त चिकनाहट हटाए, आपका रंग रूप साफ करे, दमकाए। अब मुफ्त ये अनोखी साबुनदानी क्लेरेसिल साबुन की हर 2 टिक्कियों के साथ। आज ही क्लेरेसिल साबुन खरीदिए और ले आइए ये साबुनदानी मुफ्त। अरे कुछ ठंडा वंडा ले आइए भैया। How much for this? सर जी इसकी क्या कीमत होगी? 90,000 कह दे, बिल्कुल साफ है, कोई दाग नहीं है। जी 90,000 मैडम, just clear, spotless. But you see, it is a very old cut. I won't get very much money for it. Yes, सेठ जी कह रही हैं कि हीरा तो अच्छा है लेकिन पुरानी कटिंग का है, इसलिए पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अरे समझा दे, बिल्लू है, बेदाग। मैडम it has a blue tinge and you know its value. Look, let's get one thing very clear. You and I both know our diamonds, right? You must have seen the Antwerp cut diamonds. Blue as the sky. And now, look at this. सेठ जी मना कर रही हैं। अरे इसको तो तू एक तरफ रख दे, पूरे लाख में जाएगा। How much for all this? सेठ जी इन सब की क्या कीमत होगी? $33 लाख कह दे। 33 lakhs मैडम। Oh, come on. That's exorbitant. All these are very old cuts, and even the polish isn't very good. I wouldn't get anything at all for these in the market. Look, I'll pay you 30 lakhs and no more. That's the final price. सेठ जी कह रही हैं ये तो बहुत ज्यादा है, इनमें से कुछ तो पुरानी कटिंग के हैं और कुछ की पॉलिश भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। 30 दिन वो कह रही हैं। अरे इतना मुनाफा कहाँ है इस धंधे में? देख 20-25 हजार कम में माने तो संभाल ले। मैडम नॉट लेस देन 33 lakhs. All right. You include this, and I'll pay you 31. That's fair. इसे मिलाकर 31 दिन वो कह रही हैं। ना भाई, इतना पड़ता नहीं है, हमें पड़ता नहीं खाता। अरे चाचा जी कुछ तो बच रहा है, हाँ कह दो। हाँ अच्छी ग्राहक है, हाँ कह दो। हाँ हाँ अच्छा तो भाई दे दो। Okay madam, it's a deal. Congratulations. Thank you. Shall I pack it for you? No, no, no. I'll do that myself. Okay. Do you have some sealing wax? सेठ जी हमारे पास लाख होगी। हाँ वहाँ पड़ी है, वहाँ दे दो। Yeah, just a moment. ले भाई ले। You see, I'm planning to go sightseeing today. I wouldn't feel very safe carrying this around with me. Would it be convenient for you to come to my hotel room tomorrow morning, let's say at around 9 o'clock? 9 o'clock. I'll give you your price there and then. क्या कह रही है? सेठ जी कह रही हैं कि पैसे अभी तो नहीं दे सकती क्योंकि कई जगह घूमने जाना है। अगर कल हम इनके होटल में आ जाएं तो वहीं हमें कैश दे देंगी। ना भाई ना, इतनी बड़ी रकम है, कौन धक्के खाता फिरेगा? गद्दी की बात गद्दी पे निपट जाए तो अच्छा। जी मैडम, कैन यू पे हियर टुमारो? No, that is not acceptable, I'm afraid. I'm not very familiar with this place. I wouldn't feel safe carrying so much money around with me. सेठ जी ग्राहक तो अच्छी है और फिर हम भी तो साथ होंगे। अच्छा तो भाई ले ले टाइम, कल इकट्ठे चलेंगे। Okay madam, we are coming tomorrow at 9 o'clock. Oh, that's very nice of you. Thank you. Before you go,
Good morning, Mrs. Morrison. How are you? Good morning. नमस्ते। Namaste. Hello. Hello. आइए सेठ जी। Please take a seat. Yeah, thank you. What would you like? Some tea or coffee? सेठ जी कुछ लेंगे? नहीं भाई नहीं कुछ। No, thanks a lot. So, you brought the diamonds. Yeah, सेठ जी वो हीरे? निकाल दे। You had no problems in finding the place? No, no. No. Here are the diamonds. Good. Thank you very much. I'll just go down to the locker to get the money. I'm not carrying any with me. Is that all right? Okay, no problem. I'll be back in a minute. Okay. अरे कहाँ जा रही है ये? वो लॉकर से पैसे लेने जा रही है। पर हीरे तो इसने अपने पास ही रख लिए। ऐसी कोई बात नहीं। Darling, I'll be back in a minute. समझाओ ना तुम, समझाओ चाचा जी से। अरे मांग ले हीरे, धंधे में काहे की शर्म? जी, मांगता हूँ। मांग ले। Excuse me, madam. May I have the diamonds, please? You don't trust a woman? No, no, that's not the case. I have to satisfy Seth. I suppose diamonds is a man's business. Is that it? No, no, no. Well, keep them. Thanks. I'll be back soon. Thanks a lot. ये लीजिए सेठ जी। आ रही है। ठीक है। अरे क्या हुआ? बहुत देर हो गई। आ रही होगी सेठ जी। पता नहीं, कह के तो गई है। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए भाई। आप इंतजार कर लिए थोड़ा सा। तो काफी देर हो गई, आई क्यों नहीं प्रेम वो? वो लॉकर से पैसे लेने गई है। भाई पैसे लेने गई है तो इतनी देर थोड़ा ना लगनी चाहिए थी। आ जाएगी, आ जाएगी। तू कैसे कह रहा है आ जाएगी? देख लो, देखिए सर। देखिए देखिए। हाँ। खोलिए। अंदर कोई ना चाचा जी, टेप रिकॉर्डर बज रहा था। बढ़िया खोल के देखो। देखिए 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 सर जी, देखिए। गड़बड़ लग रही है इसमें सारे में। सारे इसके शिकार हो गए आज हम। देखिए सर जी, देखो। अरे शीशा और इस तरह सेठ गेंदामल को 31 लाख के हीरों से हाथ धोना पड़ा। ये फिल्म रूपांतरण इसी सच्ची घटना से प्रेरित है। पुलिस द्वारा की गई इस तफ्तीश की जानकारी हमें दिल्ली पुलिस की फाइलों से मिली। चौधरी, इनकी बातों से लगता है कि वो हीरे लेकर इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करेगी। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। राठौर, तुम इनमें से किसी आदमी को लेकर एयरपोर्ट जाओ और ये पता करो कि मिसेस मॉरिसन का किसी आउटगोइंग फ्लाइट के लिए रिजर्वेशन तो नहीं हुआ है। प्रेम जी। तुम साहब के साथ एयरपोर्ट चले जाओ। जी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मिसेस मॉरिसन आपके पास कब से आ रही हैं? जी यही कोई पिछले हफ्ते से साहब। पिछले सोमवार को वो अपने बच्चे के साथ हमारे शोरूम पर आई थी। उन्हें एक हीरों का हार बहुत पसंद आया था। इस तरह वो हीरो का हार उन्होंने अपने लिए खरीद लिया और उसका पेमेंट भी हमें कर दिया। मिसेज मॉरिसन हमारे शोरूम में लगे हुए सामान को देखती रही। उन्होंने बातचीत के दौरान हमें बताया कि वो हीरो की व्यापारी हैं और बहुत अच्छी पारखी भी हैं। उन्होंने हमारे सेठ जी के साथ हीरो का व्यापार करने की इच्छा जाहिर की तो हमारे सेठ जी उसके लिए राजी हो गए।
सेठ जी, क्या 30-35 लाख के हीरे आपके पास हर वक्त रहते हैं? अजी कहाँ साहब, आप तो जानते हैं जमाना बहुत खराब है। 5-7 लाख के हीरे दुकान में रहते हैं। ये तो मैंने खास तौर से बाजार से उठवाए थे। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया साहब। सेठ जी, आपके हीरे तो इंश्योर्ड होंगे। अजी काहे के इंश्योर्ड नहीं थे। क्या तुमने ये हीरे मिसेस मॉरिसन के लिए ही अरेंज किए थे? जी हाँ, खास तौर पर उनके लिए बाजार से अरेंज किए थे। ये डील करने से पहले तुमने पता किया था कि वो किस देश की हैं? जी, वो थी तो हिंदुस्तानी, लेकिन पिछली 2 पुश्तों से विलायत में जाकर बस गई थी। ऐसा उन्होंने बातचीत के दौरान बताया था हमें। आपके घर में कौन कौन है? चाची जी, सेठानी जी और सेठ जी की इकलौती बिटिया माया। हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। अजी अब क्या मिलोगे, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। शंकर, तेरी चाची सुनेगी वो तो प्राण ही दे देगी। हम तो बर्बाद हो गए साहब, लुट गए। मिसेस मॉरिसन नाम की कोई औरत और एक छोटा बच्चा। मिसेस मॉरिसन? जी हाँ, SVA की फ्लाइट नंबर BC 146 पर बोर्ड हुए हैं। जस्ट अ मिनट। यस, दे आर ऑन द फ्लाइट 15AB एंड फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। मिसेस मॉरिसन और उनका बच्चा SVA की फ्लाइट नंबर BC 146 पर बोर्ड हो गया सर। बहरहाल हमें उनके सीट नंबर मालूम पड़ गए हैं, 15A और B। ठीक है राठौर, तुम वहां से सीधा इंटरपोल ऑफिस चले जाओ और लंदन के लिए ये मैसेज कटवा दो। जनाब। अब हमें बताइए कि मिसेस मॉरिसन कितने दिनों से होटल में रुकी हुई थी? फर्स्ट को उन्होंने चेक इन किया था, लेकिन चेकआउट अभी तक नहीं किया है। उन्होंने एड्रेस क्या लिखाया है? फॉरवर्डिंग एड्रेस तो कुछ नहीं दिया है, जस्ट एक बॉम्बे का एड्रेस है। वो हमारे SI साहब को लिखा दीजिए। हाँ, वो कौन से कमरे में थी? रूम नंबर 236। 236। जी बोलिए। Wake me up before you go. Don't you just come on like a yo-yo. जनाब, बाथरूम से टेप रिकॉर्डर मिला है। बिल्कुल नया लगता है और हैवी फॉरेनविक। इसमें एक बच्चे की आवाज भी रिकॉर्डेड है। महावीर, तुम क्राइम टीम को इन्फॉर्म कर दो। अब विक्स पेश करते हैं कुदरती गुणों से भरपूर नई विक्स हर्बल गोलियां। गले के लिए गुण वाली, स्वाद में भी है निराली। हर्बल गोलियां। आह, माय थ्रोट फील्स गुड। की भालो शाद। गले के लिए गुण वाली और स्वाद में भी निराली। आप और आपके लिए हर्बल गोलियां। मुंह से निकले नहीं कि जितने लोग उतनी सलाहें। नानी कहा करती थी बेसन का लेप लगा। मैंने तो अपनी बहन की फेस क्रीम और लोशन तक नहीं छोड़े। ब्यूटी क्रीम। मैं जानती हूँ इसका इलाज, क्लेयरसिल, क्योंकि ये खास मुहासों के लिए ही बनी है। क्लेयरसिल 3 तरह से असर करे। मुहासों के अंदर तक जाए, बैक्टीरिया की रोकथाम करे, मुहासे सुखाकर मिटा दे, उन्हें फैलने से रोके। क्लेयरसिल, मुहासों का खास इलाज। ये सचमुच असरदार है। शंकर की चाची, मैं तो बर्बाद हो गया। पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। जाने किसी मनहूस घड़ी में थारी दुकान पे चढ़ी थी वो, पर मैं कहूँ जी, हम उसका विश्वास कैसे कर गए? अरे देखने में तो बड़ी लगे थी वो औरत। एक बात कहूँ जी, बुरा तो मानियो मती, जो मेरे बापू जी अठेने होते तो घड़ी भर में उसकी असलियत बता देते। अरे थारा बापू कठे थे आ गया बीच में, न बखत देखे न को बखत, औरत की जात। हाँ जी, ये बात तो सच कही। मैं तो औरत की जात, मारी बुद्धि तो चोटी के पीछे। पर थम मने ये बताओ कि थम तो मरद हो हैं? थारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे क्या? सारी उम्र तो गद्दी पे बैठ के सौदो कियो, और जब छोरी पे आके लाख हो गई तो उसे
फिर अंगन के पीछे पीछे होटल चले गए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। हिम्मत रखो चाचा जी, हिम्मत। अरे हिम्मत तो ले गई वो फिरंगड़, अब तो लेने वाले आ जाएंगे छत पे चढ़ के। बासु, सेठ गेंदामल मिसेस मॉरिसन को कब से जानता है? जी 7-8 दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी। क्या हमेशा ही 30-40 लाख के हीरे उसके पास रहते हैं? नहीं जनाब, उनके पास तो यही कोई 5-6 लाख के हीरे थे। बाकी उन्होंने मिसेस मॉरिसन के लिए मार्केट से अरेंज किए थे। बासु, इस बात का पता करो कि इस डील में कौन कौन लोग शामिल थे और उनके बिजनेस एसोसिएट्स के बारे में भी पता करो। राइट सर। जनाब, इंटरपोल लंदन से अभी भी इंफॉर्मेशन आई है कि उस फ्लाइट से जो मिसेस मॉरिसन उतरी हैं वो 70 साल की बूढ़ी प्रोफेसर हैं। उनके साथ उनका नाती भी है। उनका हुलिया बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि हमें बताया गया है। Very interesting. She is very clever. I am impressed. इसका मतलब यह हुआ कि इस मिसेस मॉरिसन को पता लग गया था कि जुर्म के दिन कोई मिसेस मॉरिसन अपने बच्चे के साथ इस फ्लाइट से बुक्ड है। बासु, अगर ये मॉरिसन वो लेडी नहीं है तो शायद हीरे इंडिया से बाहर नहीं गए हैं और नकली मॉरिसन भी यहीं हो सकती है। जी। सेठ को किसी पे शक है? अभी तक तो किसी का नाम नहीं दिया। बासु, ये किसी ऐसे आदमी का काम भी हो सकता है जो सेठ को बहुत करीब से जानता हो। तुम ऐसा करो, एक टीम लेकर सेठ के घर जाओ और घर और दुकान के हर आदमी से अलग अलग पूछताछ करो। जी। और हां, इलाके के ज्वेलर्स से भी पूछताछ करो और सब ज्वेलर्स को आगाह कर दो कि जैसे ही ये हीरे आए तो हमें फौरन इत्तला दें। राइट सर। सेठ साहब, इन हीरों के बारे में आपके अलावा और कौन कौन जानता था? शंकर जाना था, प्रेम और सेठानी हमारी घरवाली। शंकर? ये शंकर आपके पास कब से है? जी, शंकर तो हमारा सीधा हाथ, बचपन में बुआ छोड़ गई थी, हमारे पास ही बड़ा हुआ, तुम्हारा बेटा है। और ये प्रेम? प्रेम है कोई कि 1 साल भर से हमारे पास, अंग्रेजी अच्छी बोले हुए। आप तो जाने हमारा काम है विलायतियों के साथ, फॉरेनर्स। वैसे लड़का तो भला है जी। आपने शायद कभी बातों बातों में किसी को जिक्र कर दिया हो। अजी बहन जी, हमें तो घर के काम से फुर्सत ना मिलती, फिर इन मर्दा के बात हमें क्यों कराते। हाँ, तुम बता रही थी कि तुमने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, ऐसा क्यों? जी हाँ, वो दरअसल मेरी मम्मी को मेरा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। अजी मैं यूं कहूँ जी, जवान लड़की को घर से बाहर निकलने दो तो बिगड़ जाती है।